So far we have studied that how a force is experienced on a moving charge particle when it is moving in a magnetic field. But now, how this magnetic field is spread over in the space? What is the source of a magnetic field? We have given reference to it that a moving charge is a source of magnetic field. We also know that moving charge makes electric current. We also know that electric charge in any state makes an electric field around it. And today we will discuss what are the laws governing making a magnetic field due to a moving charge. In place of moving charge, we will use the word electric current, क्योंकि moving charge ही electric current बनाती है. तो electric current magnetic field का source होता है. अब जब current बनेगी, how the current is formed? The charge moves, and when the charge moves, there has to be 2 points. चार्ज मूव होने के लिए एक सिंगल पॉइंट पर चार्ज मूव नहीं हो सकता. इट हैज टू बी 2 पॉइंट्स. दैट मीन्स सम लेंथ इज इन्वॉल्व्ड. बिना लेंथ के चार्ज मूव नहीं होगा, इसलिए करंट बनेगी नहीं. तो करंट बनाने के लिए लेंथ चाहिए. इलेक्ट्रिक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था उसको गवर्न करता था कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलता था? देयर इज ए कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, देन द चार्ज सोर्स डिवाइडेड बाय square of the distance. The distance at which we are trying to find out electric field from the source. If this is a source and at this point we want to find out electric field, then this distance is R. That is this R. Here the source has got strength Q and K is a constant related to atmosphere or medium here. इसी को देखकर बियोसावा ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला बनाया. लेकिन एक बेसिक डिफरेंस था. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ड्यू टू ए चार्ज पार्टिकल विच हैज गॉट ए पॉइंट शेप. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. एंड व्हेनेवर देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लेंथ ऑफ चार्ज, स्फीयर ऑफ चार्ज, तब उसके फॉर्मूलाज में alterations होते थे, modifications होते थे. We have done that. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को जब स्टार्ट करना है तो पॉइंट चार्ज से स्टार्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं होती. चार्ज हैज टू मूव एंड फॉर मोशन देयर हैज टू बी मिनिमम 2 points. Then only it will move. That means the length is also involved. So the source of magnetic field is current element. करंट एलिमेंट को मैथमेटिकली हमने एक्सप्लेन किया दैट मैथमेटिकली करंट एलिमेंट इज I multiplied by a small length in which the current is flowing, IDL. Okay, so the source of electric field is a point charge while the source of magnetic field is current element, not a point. There is a small length. Calculus हमको ये help out करती है कि DL is a very small length. It can be taken as a length if we need it, and it can be taken as a point if we need it that way. So this is that small length. Okay. बियोसावा ने ये लॉ बनाया, IDL के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा.
और कितना बनेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट I फ्लो हो रही है। तो इसका हम कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। अभी जस्ट टू शो इट मैं इसे लंबा ले रहा हूं। अकॉर्डिंग टू कैलकुलस दिस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। एनीवे दिस लेंथ इज dl and the current flowing is I. So IDL, this is the source for magnetic field we are considering here. सिर्फ इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उन्होंने बताया। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड लेना है? At any point. Let us take one point which is having position with respect to dl, और इसकी पोजीशन हम दो टर्म्स में डिसाइड करते हैं। नंबर वन, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम dl? एवरेज डिस्टेंस के लिए वी मेक ए स्ट्रेट लाइन, दिस। नंबर टू, this vector r position vector and this vector dl, they are inclined to each other and they have a angle between them, theta. r और dl इसके बीच में angle theta. Now at this point there will be a magnetic field, and because this magnetic field is for a very small element, we say this is a very small मैग्नेटिक फील्ड dB। तो करंट फ्लो हो रही है, करंट के कारण ये एक छोटा सा एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट हम ये मानते हैं कि यहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और उसके बाद अगर हमको इसका एक्सप्रेशन मिलेगा तो उस एक्सप्रेशन को लेके हम बड़े बड़े करंट के जो कंडक्टर होंगे उसके कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर लेंगे। बट वी विल स्टार्ट विद द बेसिक, एंड व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल? ए करंट एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्ट व्हिच मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दिस इज द सोर्स। हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर? दैट वाज गिवन बाय Biot for the first time, and this says that magnetic field at this point dB is directly proportionate to current and this length what we consider I dl, and this is also proportionate to, related to this angle theta. Larger is theta, more is the magnetic field. If this particle is here, then theta will be larger, and the magnetic field with the same distance, here the magnetic field will be more, larger. यहाँ पर ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर लेते हैं इतने ही डिस्टेंस पे तो थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा। तो किसके प्रोपोर्शनेट है ये? तो आंसर है dB इज प्रोपोर्शनेट टू साइन थीटा। We know sin 0 is 0, sin 90 is 90. तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलता है? आंसर है इससे 90 डिग्री पर। ये इस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलता है, इधर वीक होते जाता है और इधर भी वीक होते जाता है। ये दोनों तरफ ऑब्जर्व करके ये निकाला that magnetic field is proportionate to sin theta, and then with the distance magnetic field change. जैसे जैसे डिस्टेंस बदलता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, और ये उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एग्जांपल फॉलो करता है। सो dB is inversely proportionate to square of the distance. ये तो इस तरह से हमको एक एक्सप्रेशन मिला which was basically he was trying to copy Coulomb's law expression. So this is dB is proportionate to IDL sin theta upon r square. Now there has to be equal
इक्वल। अब यहां पर एक कांस्टेंट आया, इलेक्ट्रिकल में ये कांस्टेंट, ये मीडियम का कांस्टेंट है। वैसे ही मीडियम से क्या फर्क पड़ता है, तो कांस्टेंट आएगा। देखिए, कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि नेचर में फोर्स लगाने वाली कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। अभी तक हमने स्टडी किया, फोर्स लगाने वाली कैरेक्टरिस्टिक 3 है। वन इज मास, उससे जो फोर्स लगता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अनदर इज इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, इट मेक्स ए इलेक्ट्रिक फील्ड। मास ने क्या बनाया, ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसमें कांस्टेंट कौन सा आता है, जी। आपने देखा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, mass of the earth. Okay, this is field due to G. Field due to electric charge is K and Q upon R square. Now field due to magnetic, we will change these notations, पर अभी हम ये रखते हैं इलेक्ट्रिक, दिस इज फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी, field due to electricity and field due to magnetism. This is ideal sin theta divided by r square. Gravitational constant G. हमने देखा है अर्थ के मास से जो चीजें अट्रैक्ट होती हैं उस पर जो फोर्स लगता है उस पर मीडियम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मीडियम ग्रेविटेशन में कोई इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन इक्वेट करने के लिए यहां पर हमको एक नंबर की जरूरत है एंड दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अफेक्टेड बाय मीडियम। इसके मीडियम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक्टिव है? आंसर है दैट कैरेक्टरिस्टिक इज परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या बताती है? परमिटिविटी हमको ये बताती है कि उस मीडियम में कितनी ताकत है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेना। खुद एब्जॉर्ब कर लेती है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा, जिस पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा अगर ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। मीडियम ही ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमें कैसा मिलेगा? वीक। और ये जो मीडियम को एब्जॉर्ब करने की कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। सो मोर इज द परमिटिविटी, लेस इज द फोर्स। इसलिए परमिटिविटी डिनोमिनेटर में आता है एंड यू नो दिस K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर बनता है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उस पर भी मीडियम का इफेक्ट होता है। और ये जो मीडियम के इफेक्ट के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है स्पेस की, उस कैरेक्टरिस्टिक को हमने नाम दिया परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, और यहां पर हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहां क्या था इलेक्ट्रिकल में? 1/4 पाई, इसमें भी 1/4 पाई, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर एप्सिलॉन नीचे था, यहां पर म्यू ऊपर है एंड वी राइट इट म्यू नॉट। नॉट मीन्स दिस इज म्यू फॉर फ्री स्पेस, नॉट फ्री स्पेस के लिए है, बट व्हाट इज द कांस्टेंट? म्यू। व्हाट इज म्यू? परमिएबिलिटी। ये परमिएबिलिटी ओके मीडियम की है, और हमने ये देखा कि मीडियम से मैग्नेटिक फील्ड अफेक्टेड होता है। तो पहली चीज तो आपको याद रखना है, gravitational field is not affected by the medium. Electrical and magnetic field are affected by the medium. Second,
electric field and magnetic field are not affected the similar way. For electric field, we take the characteristic permittivity. More is the permittivity, less effective is the electric field. Permittivity is absorbance of the electric field, and rest is given out to the space, so it becomes weak. More permittivity, weaker is electric field. But permeability is not absorbance. It is conductance of field. More is the permeability, more is the conductance of the magnetic effect. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा कंडक्ट होगा अगर परमिएबिलिटी ज्यादा होगी. The numerical value for permeability is 10 to the power minus 7. This mu naught for free space that is value of mu naught. So when we say mu naught upon 4 pi, then we get 10 to the power minus 7 units. The units of B we will discuss now. Okay, so dB we can write is equal to a constant mu naught upon 4 pi, that is permeability of the medium, into I dl sin theta upon r square. This is Biot-Savart's law. This tells us about the magnitude of magnetic field at this point, and this magnetic field is affected by I, dl, length, theta and r. 4 quantities here. How it is different from electric field? The electric field, there was no theta because that was a point. Because this is a length, theta is calculated and theta is affecting magnetic field. Okay. Now, if this is a field, intensity of field dB, it is a vector quantity, और वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन भी होती है. तो यहाँ पर फील्ड किस डायरेक्शन में लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा है, if it is a positive source charge, then electric field is along the line in the direction of the line. If it is a negative charge, it is again along the line but towards the source. Away from the source, towards the source, but the direction is always along the line in electric field. Magnetic field is different. Magnetic field की डायरेक्शन के लिए हमको 3 डायमेंशन इमेजिन करने पड़ेंगे. ओके, 3 डायमेंशन इमेजिन करने का बेस्ट मेथड है these 3 fingers of our hand, whether it is left hand or right hand. Okay, here we have made it much easier. थोड़ा सा 3 डायमेंशन को और हमने इजी किया है. We made a palm rule, that is right hand palm rule. Now, what is right hand palm rule? This is right hand. Right hand का अंगूठा stretch करिए. Stretch this thumb like this. Now, this hand we can bend in this direction. We cannot bend it in this direction. So remember, this I will call palm and this is back. Now, we have to keep our thumb in the direction of electric current. This. Now, keeping this, I have to rotate my hand in such a way that palm is along the R. ये
अभी R पे नहीं है और घुमाया ये, अब ये R पे आ गई। ये इसकी डायरेक्शन में रहनी चाहिए, यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, और ये हमने ऐसे घुमा दिया। नाउ द पाम इज अलोंग R, ये दो चीजें हो गई, I एंड R। अब मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर जहां पर ये पॉइंट है वहां पर अपनी पाम पर एक परपेंडिकुलर बनाइए। दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन माई पाम। ये जो परपेंडिकुलर है ये डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की। फिर से देखिए, अगर हम इसको Z माने या इसको Y माने और इसको X माने तो ये Z है अंदर की तरफ, ये ऐसे, ये यहां पर B की डायरेक्शन होती है। इसको आप और सिंपल कर सकते हैं, ये डायरेक्शन I की है, ये डायरेक्शन R की है, और इसको आप ऐसा मोड़ेंगे, ये डायरेक्शन B की होती है। सो दिस इज टू बी केप्ट लाइक दिस। और जनरलाइज करिए और इजी करते हैं इसको। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये पाम को हम ऐसा रखेंगे और इसको ऐसा कर्ल बना देंगे, घुमा देंगे। ये डायरेक्शन बी की है। क्या ये डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है? नो, अंदर की तरफ होती है। और इसलिए हम अपने हाथ को पाम की तरफ ऐसे मोड़ सकते हैं, बाहर नहीं मोड़ सकते। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होता है। तो क्या यहां बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर करंट की डायरेक्शन को आप उल्टा कर दीजिए। करंट की डायरेक्शन नीचे करिए, फिर देखिए करंट की डायरेक्शन नीचे आएगी। अब मुझे इसके साथ हाथ रखना है, ये अगर करंट की डायरेक्शन नीचे है तो मैं ऐसे ऊपर अंगूठा नहीं रख सकता, ये नीचे करना। अगर इसे नीचे कर दूंगा और इसके साथ मुझे पाम रखना है तो मेरा पाम यहां पर ऐसे आएगा, ये नीचे करंट, ये इधर पाम आया और ये मैंने मोड़ा, ये ऊपर की तरफ। इस तरह से ये इस तरह से ऐसे आएगा। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ऊपर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और अगर नीचे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये इस तरह से। तो इस तरह से राइट हैंड पाम रूल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, so this is direction of magnetic field. Now we have got the quantity and we have got the direction. इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली जब हम इसका फोर्स पढ़ रहे थे उस समय ही हमें निकाल लेना चाहिए था, नो प्रॉब्लम। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। SI unit of magnetic field is Tesla. The unit of 1 Tesla was best given by the equation which we had done earlier, that was F is equal to QVB, or we can say B is equal to F upon Q into V. So, magnetic field intensity at a point is given by F upon Q, force per unit charge when velocity of that particle is 1 meter per second. Again, at any location, if a charge is moving with velocity of 1 meter per second and it experiences a force of 1 Newton per coulomb. Charge is moving with velocity of 1 meter per second and it experiences a force perpendicular to it. How much force? 1 Newton per coulomb. Then, at that location, the magnetic field intensity is 1 Tesla.
This is Q V cross B, or we can say Q V B sine theta. So, if the force is 1 Newton per Coulomb for the charge moving with velocity 1 meter per second, and the force is at right angle to the velocity, then at that location the magnetic field intensity is 1 Tesla. This is SI system unit. Earlier we were using CGS system, and in CGS system the unit was Gauss. This is a smaller unit, and 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. This is the conversion of the two. So this is strength of magnetic field. So what we have seen is the formula for magnetic field intensity with reference to the current flowing in a conductor. Magnetic field at a distance r when the current flowing is I, and the location is at an angle of theta. This is Biot-Savart's law, and this is taken as a fundamental law for magnetic field intensity, as we had Coulomb's law for electric field intensity. Now, based on this law, we find out the magnetic field due to different shapes of the current carrying conductors. This current carrying conductor may be a long straight line, it may be finite length, it may be infinite length. This current carrying conductor can be a circle. This can be a spring-like solenoid. This can be a square. So it may be of any particular shape, and all those derivations are done on the basis of this Biot-Savart's law. So we will try to find out the magnetic field due to a circle. Okay, but before that, see the direction of magnetic field due to a straight conductor. That is very important. If we take this as a small part of conductor, here we find the magnetic field is inside. यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो होती है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बना था. अब ये यहाँ पे ये इसमें करंट फ्लो हो रही है. मुझे पूछना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है. तो ये करंट और ये अंदर की तरफ. ठीक. अब मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है. तो इसके लिए ये हमने अंगूठा रखा, पाम को ऐसे घुमाया और इसको ऐसे घुमा दिया. देखिए इस तरफ. फिर से ये डायरेक्शन ऑफ करंट है. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा रखा और ये देखिए अंदर. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे रखा अंदर, यहाँ रखा अंदर. तो ये आप क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरह. ये क्या हुई, पूरा सर्कल बन गया. तो अगर मैं एक कंडक्टर को ऐसा शो करने की बजाय ऐसा शो करूं और करंट सामने आ रही है, तो उसे मैं ऐसे एक्सप्रेस करूंगा. ये कंडक्टर है और ये शो करता है कि करंट सामने आ रही है. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे ऐसी डायरेक्शन रखता है. यहां अगर देखेंगे तो ऐसा, यहां देखेंगे तो ऐसा, और यहां देखेंगे तो ऐसा, और एक एक पॉइंट पर आप देखते जाएंगे. देन यू विल फाइंड इट इज ए सर्कल. नजदीक आ जाइए, ये सर्कल. दूर जाइए, ये सर्कल. और दूर जाइए, ये सर्कल. So what we find that if current is flowing in a conductor, the magnetic field makes circular path this way. This is a continuous path of magnetic field, and here, 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 everywhere
the strength is same. Strength is same. The direction is different. So, now what is the shape of the magnetic field? Answer, it is circular, at the center of which is the conductor. और इसकी डायरेक्शन किधर मानी जाएगी? इसकी डायरेक्शन ऐसी. This is anti-clockwise if the current is coming out, and if the current is going in, this current going in, then this is the current going in, and this is magnetic field this way. So here is the magnetic field. So this is how the magnetic field is formed with respect to one conductor. Now, with this much knowledge, for basic knowledge, now we are in a condition to find out magnetic field due to different shapes. So the next we will see the magnetic field due to a current carried in a circle, in a conductor carrying current, and that conductor is a circular conductor. Please see that. Next derivation we see the magnetic field due to current carrying conductor, and this conductor is a circular conductor. We can write it CCC, current carrying circular conductor. CCCC. Okay. This is a current carrying circular conductor. Current I. It has got a radius. Let this radius be R. When current is flowing here, यहाँ पर जब करंट ऐसे फ्लो होती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है. करंट ऊपर जा रही है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये इसके चारों तरफ. थोड़ा सा रेडियस और बढ़ा लीजिए, ऐसे बनेगा, और बढ़ा लीजिए, ऐसे बनेगा. यहाँ पर करंट नीचे फ्लो हो रही है. अगर करंट नीचे आ रही है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा. यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे जा रहा था, ये अंदर और इधर से बाहर. फिर से ये अंदर, गोइंग इनसाइड हियर, ये मार्क मैंने बनाया, और यहां से बाहर आ रहा है, ये कमिंग आउट. ठीक. यहां पर भी ऐसा ही बनेगा. ये और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट है. अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो उसके साथ मैंने रखा, देखिए ऊपर में अंदर जा रहा है और नीचे से बाहर आ रहा है. ऊपर में अंदर जा रहा है और नीचे से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है. यहां देखिए, नो, नीचे की तरफ करंट, तो इधर से अंदर जाएगा और इधर से बाहर आएगा. तो यहां से इसने अंदर जाना है और इधर से बाहर आना है. इधर से अंदर जाएगा और इधर से बाहर आएगा. वैसे ही हम नीचे से देखते हैं, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट, तो ऊपर से बाहर आएगा और नीचे से अंदर जाएगा. तो यहां से अंदर जाएगा और यहां से बाहर आएगा. ये मैग्नेटिक फील्ड की शेप होती है. ऐसे यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा. अब पर्टिकुलरली हम इस पोर्शन को देखते हैं, सेंटर के चारों तरफ या सेंटर पर. यहां पर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण बाहर आ रहा है, इसके कारण बाहर आ रहा है, इसके कारण बाहर आ रहा है, और इस करंट के कारण भी बाहर आ रहा है. तो यहां पर सभी के सभी हमको कैसे दिखते हैं? ऐसे. ये बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर ऐसे, और इधर से ऐसा आया, इधर से ऐसे आया, ये ऐसे.
तो ये हमको क्या दिखता है, ऐसे बाहर आते हुए। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। किनारे किनारे पे ये होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन सेंटर में आके मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसा मिलता है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल की एक्सिस किसको कहते हैं? तो आंसर है सर्कल की एक्सिस ये होती है, ये सर्कल की एक्सिस है। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो कैसा मिलता है? अलोंग द एक्सिस। सो एट सेंटर the magnetic field is along the axis. ओके, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये कौन सी करंट है? एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉक फील्ड coming out, कमिंग आउट फील्ड किसको कहते हैं? अगर हम ये एक मैग्नेट लेते हैं, इस मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, जब हम यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, ये मैग्नेटिक नीडल रखी तो मैग्नेटिक नीडल ने इधर नॉर्थ इधर साउथ दिखाया और इधर अपना नॉर्थ सुई इधर कर ली। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? नॉर्थ इधर इंडिकेट हो रहा है, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर यहां पर नीडल रखते हैं तो वो नीडल ऐसे दिखाती है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है, साउथ इधर है, नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाती है, साउथ टू नॉर्थ, दिस इज डायरेक्शन। तो हम ये मानते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? बाहर निकल रहा है, सो इट इज एज गुड एज नॉर्थ। एनीवे, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता है, ऐसे पैरेलल होता है, अलोंग दी एक्सिस होता है, अलोंग एक्सिस। ये इसकी डायरेक्शन यहां पर होगी, ऐसे एक झुंड बना हुआ, जैसे झाड़ू को हम ऐसे बांध देते हैं, ऐसे ब्रश को बांध देते हैं, शेविंग वाले ब्रश को, उस तरह से यहां से इस तरह से बाहर निकलता है। जब बहुत दूर आएगा तो फिर ऐसा फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसे निकलेगा। अब यहां पर इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है वो हम निकालना चाहते हैं। ये डिस्टेंस r है, ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने लिया आईडीएल, तो ये एंगल r और आईडीएल के बीच में थीटा एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो dB की वैल्यू, दिस इज आईडीएल sin 90 अपॉन r स्क्वेयर, दिस इज dB, और सामने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, अगर ये आईडीएल की वैल्यू dB की वैल्यू आ गई है तो क्या हम पूरा B निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। B के लिए हमने इसका समेशन किया इस पूरे सर्कल के लिए, यानी इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो B विल बी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin 90 is equal to 1, so we need not write it, upon r square. अब हर mu naught is a constant, 4 pi is a constant for this medium, and I at every location is same, so I is also constant for integration purpose. R, यहाँ का R, यहाँ का R, यहाँ का R, all the values of R is not changing. Therefore, for integration purpose, this is also a constant. So, what do we get B here? Mu naught upon 4 pi R square.
I. All these are constant. Integration is for dl. dl को इंटीग्रेट करिए, यहां पर ये dl है, नेक्स्ट dl ये, नेक्स्ट dl ये, नेक्स्ट dl, नेक्स्ट एंड फॉर कंप्लीट साइकिल. जब हम पूरे साइकिल के लिए लेते हैं तो ये पूरे dl का सम कितना हो जाएगा? वी ऑल नो इट इज 2 pi r. सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 pi I upon r square into 2 pi r. So this is 2 and 1 r is cancelled. So this is mu naught I upon 2 r. This is magnetic field at the center of a current carrying circular coil. Mu naught I upon 2 r. Please remember, this is a very versatile and very much useful relation. Mu naught I upon 2r. This is at the center of a current carrying circular coil. And this is sum of magnetic field made by all different dls. Now, इसमें हमने एक छोटी सी चीज और देखनी है, which will be required for our exercise. Suppose this is not a full circle, it is half the circle. So if it is half the circle like this and current is flowing in it, how much will be magnetic field at the center? The answer is this summation. In place of 2 pi r, this will be only pi r. So that will remain half of it. So if current is flowing in this, then magnetic field for this, how much is this? 180 degree. So for this, आधे सर्कल के कंडक्टर के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और इसका हाफ कर दीजिए. दिस इज 1/4. ओके, और देखिए, सपोज दिस इज 90 डिग्री. ये रेडियस को लेके हमने करंट फ्लो कराई. ये तो ये जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? दिस इज 90 डिग्री. नाउ जब ये पूरा 360 डिग्री था तो इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता था, और अब कितना है? सिर्फ 90 डिग्री का आर्क है. ये वाला आर्क कितना है? यहां से लेके यहां 90, 180, 270, 360. हियर इट इज 90. तो हम क्या करते हैं, ये जो b की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इसके 360 पार्ट कर लेते. उसके बाद जो भी यहां थीटा की वैल्यू है उसको यहां रख देंगे, एंड दिस गिव्स अस b फॉर एंगल थीटा. अब अगर यहां पर 180 है तो ये 180 होगा, एंड दिस विल बिकम हाफ. अगर ये 90 है तो ये 1/4 r काम में आएगा. सो दिस विल बिकम 90 अपॉन 360, दैट इज 1/4. इस तरह से आप इसको यूज करके किसी भी r के लिए, फॉर एनी आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा, सबटेंडिंग एंगल थीटा, तो थीटा एंगल के लिए ये b की वैल्यू. तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं. और एक छोटी सी चीज, when this theta is equal to 0, IDL साइन के बाद जो थीटा है, अगर वो 0 है तो वो कब होता है 0?
ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और हमने इसके ऊपर ही यहाँ पॉइंट लिया इन द लाइन ऑफ इट, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ आर। यहाँ कहीं भी dl लीजिए, उस dl से अगर आप ये r लेते हैं तो उसके साथ एंगल कितना होगा, 0। एंड इफ दिस एंगल इज 0, then what is the value of idl sin theta? So answer here, theta is equal to 0, therefore b is equal to 0. This gives us very important conclusion that at any point along the axis of a conductor, along the line of the conductor, at any point magnetic field is 0. This is very important conclusion. Along length of conductor B is equal to 0. तो यहां पर अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इस पार्ट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आंसर है 0। इस पार्ट